Hey everyone, I hope you all are happy, safe, and preparing for your coming examinations, right? So, you all are thinking that why I am here with you guys, but I want you to give you a little surprise that is surprise of revision. So I am directly here with you all for the revision purpose, and we all are putting together our efforts to make this examination a successful event, right? So without delaying, I am going to revise your chapter number 3, the fun they had, and this chapter 3 number is for class 8th and chapter 1 of class 9. So I am collectively making video for both the classes, for both the students of the class, right? And now you all are familiar with the aspect that in this exams, MCQ format we are going to follow, right? So you must have all the major details, basic details that are included in the chapters. So I can ask you anything from your text. So one of the prerequisite I want you to give for your tip for your examination will be that read thoroughly your text, read everything very carefully. And now today I am going to explain about the chapter 3, the fun they had. So in this chapter we have two characters, that is basically Margie and Tommy. Margie is of 11 years and Tommy is of 13 years. So in this very chapter we are going to discuss about the time period of 17th May 2155. 2155 is given in class 8th, and in 9th class CBSE book it is given as 2157, right? So just go with the flow with your books, whatever has been given according to your standard, right? Now this chapter includes the most basic information about the coming time period where there will be no school, there will be no teacher, and there will be no friends, no books, only and only computer screen. So this chapter very much open with the line that Margie was writing her diary in computer. सो बिकॉज पेज का ज़माना नहीं उस टाइम पे है, तो आज के टाइम से मीन्स आने वाले टाइम के 2157 ईयर की बात करिए, अभी तो 2020 चल रहा है, तो मीन्स 2157 की बात करी हुई है हमारे पास, तो उस ईयर की बात करी है. अब देखिए आप बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करेंगे. वी ऑल आर इन दिस क्वारंटीन पीरियड, वेरी लॉकडाउन पीरियड, एंड you all are already familiar with the aspect that about this e-learning thing, right? You are very first generation. I must say that you all are considered in our history period that there was a time when we started learning from our homes. Like I am sitting at my home and delivering lecture to you guys, and you are sitting at your place and just listening to me and getting all the knowledge. The major difference is here, I am here with you guys to guide you for everything. But in this chapter the author is discussing about the time when there will be no teacher, only computer screen. It will assign you your home assignments, your daily arithmetic lessons or geography lessons, whatever it will be. So the thing is, with the time period, with the time span, everything is going to change, right? So this funny lesson, that throws light about the education of our children, the way they are going to grasp the education. Like the present day classes will be devoid of the real teachers, means abhi to teachers हैं, they are with you guys to help you out in every situation, but एक टाइम ऐसा भी आएगा जब कुछ भी नहीं होगा, कोई कॉपी पेन पेंसिल, कोई बुक, कोई स्कूल, कोई टीचर, कुछ भी नहीं होगा. सब अपने घर पे पढ़ेंगे, अपने ही उनके घर पे एक कंप्यूटर स्क्रीन बड़ी सी होगी जिसमें वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उनको, एक रोबोटिक टीचर जो होगा उनको लेसन देगा.
ये चैप्टर उस चीज़ के साथ डील करता है। तो यहाँ पे एक फैक्ट बताया है, द वेरी टाइटल जो तुम लोगों के साथ डिस्कस करें, द फन दे हैड। द फन दे हैड को पहले मैं डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ पे मार्गी जो है वो बात कर रही है टॉमी के साथ, और टॉमी उसको बताता है कि मैंने एक बुक देखी है और उस बुक के अंदर डिस्क्राइब करा गया है, उसमें यू नो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ प्रिंटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर। तो वो उनके लिए एक जादू जैसी चीज़ आ जाती है कि पता नहीं हमारे हाथ में क्या लग गया है ऐसा, लेकिन आज के टाइम पे हम लोगों के लिए कॉमन है। सो ये मीन्स बहुत फ्यूचर टाइम का कुछ एस्पेक्ट लिया गया है, कुछ इस तरीके से बताया गया है कि ऐसा एक टाइम आएगा जब ये होगा। तो यहाँ पे मार्गी वही टॉमी से बात कर रही है। तो टॉमी उसको बताता कहता कि मैंने एक बुक देखी है तो उस पर सब प्रिंटेड टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सब। तो मार्गी बहुत हैरान होती है। तो उसको बताती भी है, मीन्स टॉमी उसको बताता भी है कि हमारे यू नो जो दादा लोग थे उनके टाइम पे स्कूल होते थे, वो स्कूल जाते थे, एक बिल्डिंग होती थी, वहाँ पे एक यू नो टीचर होते थे जो उनको पढ़ाई कराते थे, मैसेज बच्चे स्कूल में रिसेस पीरियड होता था, मॉर्निंग असेंबली होती थी, एक एक चीज़ होती थी वहाँ पे, वो सब चीज़ को एंजॉय करते थे। जैसे आप लोग भी, आई मस्ट से यू ऑल आर ऑल्सो मिसिंग योर यू नो स्कूल एट दिस टाइम। सो ऐसा ही कुछ सीन क्रिएट किया गया है इस स्टोरी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो अभी फ्यूचर एजुकेशन की मैंने आपको बात बताई, पॉइंट बाय पॉइंट मैं चलूँगी। जैसे फ्यूचर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, उसके बारे में बात करी है कि राइटर ने देखा कि फ्यूचर मोड में जो बच्चों का एजुकेशन का सिस्टम होगा वो कंप्यूटर के थ्रू होगा, एक मैकेनिकल टीचर होगा, वही उनको उसके अकॉर्डिंग लेसन देगा। सेकेंड पॉइंट, फाइंडिंग एन ओल्ड बुक। तो मार्गी मतलब टॉमी हैज़ फाउंड, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टॉमी हैज़ फाउंड अ रियल बुक टुडे। तो ये जो तुम लोगों का है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो एमसीक्यू फॉर्म में आपसे ऑथर के बारे में पूछ सकते हैं, सब A to Z चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। मीन्स आपको यू हैव टू गो थ्रू ऑल द लाइन्स वेरी केयरफुली, और जहाँ पे भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछना है आप लोगों ने, राइट। तो now I'm going to take the next point that Marky hated for school. So here I'm going to discuss that you know Margy was very much slow in her geography section, and she really didn't like her schoolroom. Means her schoolroom was her classroom at her home before the computer screen, right? And so her mother, she was generally you know was failing in her geography test, and her mother was very much concerned about it. So her mother called once county inspector, and he was little round man, and he called, it was means he had a box of tools, and suddenly he separated the teacher, he just separated the teacher, and but it was on a big screen for an hour or so, and later on there were lesson and questions on it, and there was a slot there. Margy had to put her homework and her assignment regularly on the basis daily basis. Later on what happened, she was doing it when she was 6, so she knew it very well, that how to operate that computer screen, that robotic teacher as well. And later on the mechanical teacher calculated her marks and gave her credit according to her performance in the test, right? So the county inspector informed Marky's mother that she is doing very well in all her subjects, but there's a problem only in her geography section, and there's a question in your book also, that why Margy's geography section was weak, because it was little geared up. Progress was it was little geared up just because and she was unable to perform well in her geography section. तो ज्योग्राफी के टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करी थी, क्योंकि जो एक्टिविटी कंप्यूटर स्क्रीन का था वो बढ़ चुका था उसकी एज के कंपैरिजन में, दैट्स वाई वो उसके लिए मुश्किल हो चुका था उस चीज़ को समझना। अभी देखो तुम लोग, इफ़ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, तो मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आप लोगों का लेवल देखते हुए मैं अपने लेक्चर को डेवलप कर सकती हूँ, अपने लेक्चर को मेनटेन करती हूँ, सो दैट तुम लोगों को वो चीज़ समझ में आए जहाँ पे तुम एक्चुअली में लैग करते हो। बट
जो कंप्यूटर टीचर हैं दे हैव नो इमोशंस, नो पर्सनल रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, सो they will not going to personally interact with the students. So you all are lucky that you got chance, and we are interacting with each other and we are discussing our problems. But मार्गी के पास ऐसा कोई चांस नहीं था कि वो डिस्कस कर पाती कि why she was lacking in her geography section. And so that county inspector slowed down the whole process of the computer, and in this way the Tommy, she asked Tommy why anyone would now she was asked about why that somebody write about school in the book that Tommy found. Now listen, the very fact that Tommy told her about school, as I have discussed with you earlier that उसको टॉमी को एक बुक मिली थी एटिक से. एटिक मीन्स अ स्टोर काइंड ऑफ रूम, तो जहाँ पे बुक्स पढ़ी होती थी. अदरवाइज वो लोग क्या करते थे, स्क्रीन पे बुक्स पढ़ते थे. देयर वाज सो मेनी ई बुक्स, तो वो देयर विल बी सो मेनी ई बुक्स जो वो पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर. तो वो मूविंग वर्ड्स, जैसे अभी भी आप लोग पढ़ते हो तो वो मूव करते हैं वर्ड्स, लेकिन हमारे पास जो बुक्स होती हैं उसमें जो हमारा टेक्स्ट है वो एक स्टेबल पॉइंट पे रहता है, वो हिलता नहीं है. तो उनके लिए ये बहुत नई सी चीज़ थी, राइट. तो अभी उसने बताया, तो मार्गी सोचती है कि उस टाइम पे उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास कितना फ़न, ग्रैंड पेरेंट्स जब उसको बताते थे कि हमारे स्कूल ऐसे होते थे वैसे होते थे, जैसे तुम सोचते हो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कई बार बताते हैं कि हम स्कूल पैदल जाते थे, ऐसा होता था वैसा होता था, ये करते थे. तो तुम्हारे पास वो सुनने के लिए स्टोरीज होती है, राइट. अभी देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू विल लेट नो द कमिंग जनरेशंस दैट यू ऑल्सो केम अक्रॉस सच पेंडेमिक, जो ये वर्ल्ड वाइड कोरोना फैला है, तो आप लोग भी बताएंगे. यू आर ऑल्सो बिकमिंग द पार्ट ऑफ हिस्ट्री. सो इस तरीके से जो है हिस्ट्री डेवलप होती जाती है. तो मार्गी थोड़ा सा उस चीज़ को लेके कंसर्न थी कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका वो स्कूल जाते थे, दोस्त होते थे, मज़ा आता था उनको जाकर वहाँ पे. लेकिन एज सच जो मतलब इन लोगों के पास, मार्गी और टॉमी के पास एज सच कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि वो बाहर जाके मज़े करें, राइट. तो स्कूल रूम ऑफ मार्गी का जो मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस करूँगी अभी. Her mother called Margie as it was her time for school room and Margie went into her school room. तो वो अपने क्लासरूम में चली जाती है. तो क्लासरूम कहाँ होता है, साथ वाले कमरे में. And the mechanical teacher was waiting for her. तो it was a regular in its work. तो रेगुलर उसको काम मिलता था. अब जब रेगुलर काम मिलता है तो उसको अपनी रेगुलर असाइनमेंट सबमिट करानी पड़ती है, जिसमें उसको अरेथमेटिक के लेसन्स जो हैं वो एडिशंस के ऊपर दिए जा रहे हैं. इट ऑल्सो इंसर्ट होमवर्क फॉर द प्रीवियस डे का तुम अपना रिपोर्ट सेंड करो, राइट. तो तुम्हें आगे नेक्स्ट रिपोर्ट मिलता है. तो ये दिस प्रोसेस गोज़ ऑन एंड ऑन. तो द टीचर वर अभी जो कंपैरिजन करा गया. अब तुम लोगों को एक क्वेश्चन आ सकता है कि कंपेयर करो ओल्ड स्कूल रूम्स विद द प्रेजेंट स्कूल रूम्स, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेजेंट रूम विद द फ्यूचर स्कूल, फ्यूचर कमिंग जो फ्यूचर टाइम के स्कूल्स होंगे उनके साथ. तो यू शुड नो एवरीथिंग वेल अबाउट दिस चैप्टर कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर स्क्रीन्स होगी, रोबोटिक टीचर्स होंगे, एक ही स्क्रीन पे सारे के सारे चैप्टर्स करा दिए जाएंगे. अभी तो हमारे पास हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन देयर कम्स अ टाइम जब तुम लोगों को मतलब आने वाली तुम लोगों को नहीं आने वाले टाइम पे जो जनरेशन को काम करवाया जाएगा वो एक ही जो रोबोटिक टीचर होगा वो करवाएगा. सो मार्गी वॉज लॉस्ट डीप इन थिंकिंग अबाउट द स्कूल इन ओल्डन डेज़ कि ओ कैसे होते थे वो पुराने ज़माने के स्कूल. जैसे हम सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा के टाइम पे कितने फ़न होते थे, हमारे पास नहीं है. लेकिन हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि इन लोगों के पास कितनी एडवांसमेंट है जो उनके पास नहीं थी. हमारे पास अब एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, दैट्स वाई वी आर कनेक्टिंग विद ईच अदर. अगर हम कनेक्ट ना हो पाएँ तो मे बी इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस. तो राइट, सो वी शुड हैव टू बी टेक्नोलॉजी थैंकफुल टू द टेक्नोलॉजी ऑल्सो कि हम लोग आपस में कॉन्टेक्ट में हैं, राइट. सो दीज ऑल आर द मेजर एस्पेक्ट्स आई हैव covered in this discussion. I hope it will be very fruitful for you. So keep preparing for your examination, and in next coming days I am going to put another some useful videos for you guys, and stay tuned. Thank you very much.